जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली। गीता सुधा, गृहस्थ आश्रम का गीता अभ्यास, पंचमोध्याय, श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। जिस प्रकार और लोग फल की आशा से कर्मों का आचरण करते हैं, उसी प्रकार योगी लोग भी कर्मों का आचरण करते हैं। पर वे लोग यह समझकर उन कर्मों की ओर उदासीन रहते हैं कि ये सब कर्म हमारे किए हुए नहीं हैं। फिर ऐसा पुरुष जिस ओर देखता है, उस ओर शांति और आनंद की वर्षा होने लगती है। वह जहाँ रहता है, वहीं आत्मबोध का भी निवास होने लगता है। वह इस 9 छिद्रों वाले शरीर में रहकर भी देह भाव से दूर रहता है और वह फल की आशा छोड़ चुका होता है। इसलिए कर्मों का आचरण करने पर भी वह अकर्ता ही बना रहता है। The man who has controlled the senses renounces all actions by discrimination, by seeing in action, and rests happily in this body of 9 openings, the 9-gated city, because he is free from cares, worries, anxieties, and fear, and his mind is quite calm. He enjoys the supreme peace of the eternal. In this 9-gated city, the Atman, self, is the king, the senses, the mind, the subconscious mind, and the intellect are the inhabitants or subjects. Om. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ గృహస్థు మార్గంలో గీతాభ్యాసం అధ్యాయం 5 శ్లోకం 13. అంతఃకరణము ఎవని వశంలో ఉన్నదో ఆ విధమైన సాంఖ్యయోగ ఆచరణను కావించు పురుషుడు చేయకనో చేయించకనో నవద్వారములు కలిగిన ఈ శరీరం అనే గృహంలో సమస్త కర్మలను మనస్సుతో త్యజించి ఆనందపూర్వకంగా సచిదానందమైన ఆ పరమాత్మ స్వరూపంలో వసిస్తూ ఉంటాడు. ఏ విధంగా ఇతర జనులు ఫలాపేక్షతో కర్మాచరణ గావిస్తూ ఉంటారో అదే ప్రకారంగా యోగులు కూడా కర్మాచరణ గావిస్తూ ఉంటారు. కానీ వారు ఈ పనులన్నీ మాచే చేయబడినవి కావు అని గ్రహించి ఆ కర్మల పట్ల ఉదాసీనులై ఉంటారు. అటువంటప్పుడు అట్టి పురుషులు ఎటు చూస్తే అటు శాంతి మరియు ఆనందముల వర్షం వర్షిస్తూ ఉంటుంది. వారు ఈ నవరంధ్రములు కలిగిన శరీరంలో ఉంటున్నా కూడా దేహబుద్ధి నుండి దూరంగా ఉంటారు. అంతేగాక వారు ఫలాపేక్షను విడిచిపెట్టిన వారు విడిచే కర్మలను ఆచరిస్తున్నప్పటికీ కూడా వారు అకర్తే అవుతారు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. ज्याचा स्वतःच्या विवेकावर ताबा आहे, जो व्यक्ती अशा सांख्य योगाचा अभ्यास करतो, इतरांना काहीही करत नाही किंवा करायला लावत नाही, तो 9 दरवाजे असलेल्या शरीरगृहात मनातील कर्मांचा त्याग करून आनंदाने परमात्मा सच्चिदानंद घनाच्या रूपात राहतो. ज्याप्रमाणे इतर लोक फळ मिळण्याच्या आशेने आपली कृत्य करतात, त्याचप्रमाणे योगी देखील त्याच पद्धतीने आपली कृत्य करतात. पण ते लोक त्या कृतीबद्दल उदासीन राहतात, कारण त्यांना वाटते की या सर्व कृती आपण केल्या नाहीत. मग असा माणूस जिथे जिथे दिसेल तिथे तिथे शांती आणि आनंदाचा वर्षाव सुरू होतो. तो जिथे राहतो तिथे आत्मजागरूकता देखील तिथेच राहू लागते. या शरीरात 9 छिद्रे असतानाही तो शरीर चेतनेपासून दूर राहतो आणि त्याने फळाची आशा सोडली आहे, म्हणून कर्म केल्यानंतरही तो करता नसलेला राहतो. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. മനസാക്ഷിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അത്തരം സാംഖ്യയോഗം പരിശീലിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെയും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കാതെയും
9 വാതിലുകളുള്ള ശരീരമാകുന്ന ഭവനത്തിൽ പ്രവർത്തികളെ മാനസികമായി ത്യജിച്ച് പരമപുരുഷനായ സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ രൂപത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ വസിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ യോഗികളും സമാനമായ രീതിയിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ യോഗികൾ കർമ്മങ്ങളോട് നിസ്സംഗത പുലർത്തുകയും ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് തങ്ങളല്ല എന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരമൊരു മനുഷ്യൻ എവിടെ നോക്കിയാലും അവിടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും വർഷിക്കാൻ തുടങ്ങും. അവൻ എവിടെ വസിക്കുന്നുവോ അവിടെ ആത്മബോധം കുടികൊള്ളാൻ തുടങ്ങുന്നു. 9 വാതിലുകളുള്ള ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും അവൻ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നു. ഫലപ്രതീക്ഷ അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷവും അയാൾ കർമ്മരഹിതനായി തുടരുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. जे अपन अंतःकरण के पूर्ण रूपेण अपना अधीन रखने अछि। एहन सांख्य योगी मनुष्य एहि शरीर रूपी घौर में रहितो अपना मौन से समस्त कर्मक त्याग क क आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्माक स्वरूप में स्थित रहैत छथि। जै तरहे सामान्य लोक फलक आशा से कर्म करैत अछि, तहिना योगी सब सेहो कर्म करैत छथि, मुदा भिन्न भाव से। ओ जानैत छथि जे ई समस्त क्रिया वास्तव में ओ नहि करैत छथि। कर्म तऽ प्रकृति रूपेण घटित भऽ रहल अछि, आत्मा तऽ केवल साक्षी बनि रहल अछि। एहन भावसँ ओ कर्म करैत छथि, मात्र हुनकर चित्त निरंतर उदासीन रहैत छनि। एहन योगी जाहि दिशा में दृष्टिपात करैत छथि, शांतिक वर्षा होइत अछि। जतेक ठाम ओ रहैत छथि, ओतऽ आत्मबोधक आलोक के प्रकाश भऽ जाइत अछि। 9टा भूरवाला एहि शरीर में ओ निवास करितो देह भाव से पार पा चुकल छथि। जखन ओ फलक कोनो आशा नहि रखैत छथि, तखन कर्मक आचरण करितो ओ अकर्ता बनल रहैत छथि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।